नमस्कार। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी क्वाड्रिलेटरल की, स्पेशली पैरेललोग्राम की, और फिर उसके अंदर हमने क्वेश्चंस शुरू किए थे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी हमको एंगल्स का रेशियो या किसी भी चीज़ का रेशियो देते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये 3x, 5x, 9x या और 13x है, या फिर हम 3k, 5k, 9k, 13k कोई भी कांस्टेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई करके और हम लिख सकते हैं। तो लेट एंगल्स आर, हम सपोज करें ये एंगल्स 3x, 5x, 9x एंड 13x, ये 13x ये दिया हुआ है। अब हमने पहली प्रॉपर्टी की थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिस इज 360। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 8, 17, 17 और 20 और 30। 30x is equal to 360. Therefore, x will be equal to 360 upon 30. So, this will cancel and here this will cancel 12 times. Means x is equal to 12. Therefore, अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्स्ट एंगल this is equal to 3x, means 3 into 12 is equal to 36 degree. Second angle will be equal to, दूसरा है 5x, so this is 5 into 12 means 60 degree. Then third angle will be equal to, this is 9x, so this is 9 into 12, ये 108 degree. Then fourth angle will be equal to, this is 13x, right? So this will be 13 into 12, 12 3s are 36, तो 6 हो गया, 3 बचा, 12 और 3 15 means 156 degree. So these are angles of the quadrilateral. Okay. So, next is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. यहाँ पे हमको given to prove सब लिखना पड़ेगा कि because nothing is mentioned here. So what is given? पहले the diagonals of a parallelogram. तो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD is a parallelogram in which diagonals are equal. AC
and BD are diagonals such that AC is equal to BD। ये चीज दी हुई है और हमको शो करना है, तो टू प्रूव ABCD is a rectangle। So, if we want to prove this is a rectangle, we will take triangle ABC और triangle ABD, इन दोनों triangles के अंदर ये इसके बराबर means AD is equal to BC, AD is equal to BC। इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है। सो रीजन इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, right? Then second thing, AB is equal to AB, common side, AB is equal to AB, reason is common side, common side। Then here AC is also given to be equal to BD because this thing is given। तो AC is equal to BD, reason is given। This is given, and therefore triangle ABC will be congruent to triangle ABD। क्यों होगा? ये देखिए, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, यहाँ पे एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, मतलब एस थ्योरम से these two triangles are congruent। This is by S theorem, right? And therefore अब देखिए यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट? सो एंगल A is equal to angle B, reason is CPCT। Now once we have proved these angles are equal, but also we know these are parallel lines, this is transversal, then we have seen three properties. If two lines are parallel, this is cut by transversal, then corresponding angles are equal, alternate angles are equal,
and sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री। ये तीसरे वाले का हम यूज करेंगे। तो we will write but angle A plus angle B is equal to 180 degree, 180 degree. Reason is AD is parallel to BC. AD is parallel to BC, right? So A plus B is equal to 180 or A is equal to B also. Therefore, each of this, therefore angle A is equal to angle B is equal to 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। और अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी अगर 90 हो जाता है देन दिस बिकम्स रेक्टेंगल। तो यहाँ पे therefore पैरेललोग्राम ABCD will become a rectangle। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। अब आगे आप ध्यान रखना, हम जो क्वेश्चंस करते हैं हो सकता है आगे की क्वेश्चन में उसका यूज हो जाए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये वाली चीज यूज कर सकते हैं कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज show that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर rhombus होगा तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, देन दिस विल बिकम ए रोम्बस, ठीक है। तो लेट अस राइट, क्योंकि यहाँ पे भी गिवन टू प्रूव सब लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या होगा, गिवन ABCD, पहले क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ABCD is any quadrilateral in which AC and BD are diagonals intersecting at point O। तो ये पॉइंट को अगर हम ले लें O, such that क्या क्या दिया हुआ है, diagonals bisect each other and they are at right angle also। तो such that bisect कर रहे हैं मतलब OA is equal to OC and OB is equal to OD। तो पहले तो ये लिख दें, OA is equal to OC, OB is equal to OD, और तीसरी चीज एट राइट एंगल, मतलब AC और BD एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, मीन्स AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये चीज सब दी हुई है और प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस होगा। सो टू प्रूव ABCD is a rhombus,
अब देखिए इसका प्रोसीजर कैसा हो सकता है। सबसे पहले हम प्रूव कर दें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और फिर अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो जाती है। अगर उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। ठीक है। अच्छा, हमने थ्योरम्स की हैं कुछ और उनके कॉन्वर्सेस भी किए हुए हैं। थ्योरम हमने की थी इन ए पैरेललोग्राम, पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और तीसरा था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और इनके कॉन्वर्सेस कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो देन दिस इज ए पैरेललोग्राम, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो देन ऑल्सो दिस इज ए पैरेललोग्राम, और तीसरा अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं देन ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो दिस विल बिकम ए पैरेललोग्राम, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये लिख दें, तो इन प्रूफ we know if in a quadrilateral diagonals bisect each other, then it is a पैरेललोग्राम। ठीक है। तो यहां पे therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये चीज तो प्रूव हो गई कि ABCD पैरेललोग्राम। अब हमको सिर्फ प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये दोनों तो आपस में इक्वल होती है और ये भी इक्वल होती है। केवल अगर हम ये प्रूव कर दें कि AD इज इक्वल टू BC तो हमारा काम हो गया, ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम ये दोनों ट्रायंगल, सपोज ये दोनों ट्रायंगल्स लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहली चीज OA इज इक्वल टू OC, और रीजन इज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा OD इज इक्वल टू OD, ये कॉमन साइड है। और तीसरा ये दे आर एट राइट एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दिस इज ऑल्सो गिवन। Therefore, these two triangles are congruent by SAS theorem। ये देखिए दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे ये दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, these are equal, और जब ये इक्वल है therefore these are congruent, और congruent हुए therefore this side will be equal to this side by CPCT. But if adjacent sides in a parallelogram are equal, then this is a rhombus, therefore this will be, ABCD will be a rhombus, right? अब देखिए इसको हम प्रूफ इसका लिखें, in triangle AOD and C triangle COD, इन दोनों के अंदर पहली चीज OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, रीजन इज गिवन। देन OD इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OD,
Reason is common side, right? Then third thing, angle AOD, angle AOD is congruent to triangle COD. Sorry, not triangle, this is angle COD. Reason is because AC is perpendicular to BD or BD is perpendicular to AC. This is given. Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COD. These are congruent by SAS, right? Therefore, और अगर ये दोनों congruent, therefore AD is equal to DC. AD is equal to DC. Reason is CPCT. Now, these are adjacent sides of parallelogram, therefore this will be a rhombus. So, but these are adjacent sides of parallelogram. Therefore, parallelogram ABCD is a rhombus. तो ये प्रूफ हो गया कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो क्वाड्रिलेटरल विल बिकम ए rhombus, right? Now, next, show that diagonals of a square are equal and bisect each other at a right angle. तो अगर एक ABCD स्क्वायर दिया हुआ है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और दूसरी चीज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है? तो what is given? Given ये स्क्वायर दिया हुआ है ना? और ये सपोज किया कि ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. सो गिवन ABCD is a square in which diagonals AC and BD intersect each other at point O. ठीक है? To prove हमको प्रूव करना है कि they are equal, diagonals are equal and they bisect each other at right angle. So to prove AC is equal to BD, दूसरी चीज they bisect each other means OA is equal to OC, OB is equal to OD and AC is perpendicular to BD. ये चीजें हमको प्रूफ करनी है. Now we come to proof.
अब देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिख के ही जो हमने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं उसका यूज करके और ये प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसके अंदर सिंस दिस इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर ये खुद एक पैरेललोग्राम होता है। जब ये खुद एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो हम कर चुके हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम। तो ये बाइसेक्ट ईच अदर ये हो गया। दूसरी चीज, स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब स्क्वायर इज ए रोम्बस। अब जब ये रोम्बस होता है तो रोम्बस के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये एट राइट एंगल भी हो जाएगा। सिर्फ एक चीज बच रही है, वो है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये चीज हमको प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो बाकी के लिए तो हम लिख सकते हैं और इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो ए स्क्वायर is a पैरेललोग्राम, या फिर हम सीधे रोम्बस लिख देते हैं। वी नो ए स्क्वायर इज ए रोम्बस एंड diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. Therefore तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, राइट। अब हमको केवल प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो इन ट्राइंगल we will take in triangle ABD, ABC and triangle ABD, इन दोनों के अंदर this is equal to this, AD is equal to BC, दूसरा AB is equal to AB is equal to AB, common side, and this angle is equal to this angle is equal to 90 degree, and angle A is equal to angle B is equal to 90 degree, and therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD, and therefore AC is equal to BD, CP.